ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بزرگی برتری وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سماء کے لیے ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے اوپر، بالخصوص آخری کڑی آخری پیغمبر پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، دوستوں، عزیزوں، عزیز بچوں، پردے میں موجود خواتین اسلام، ہماری پیاری مائیں اور بہنیں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ العزیز رزق حلال ہی کیوں، اس عنوان پر گفتگو کی جائے گی. حضرات گرامی، بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں بلکہ یہ کہتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تو ہمیں کمانے کا حکم دیا ہے، رزق حاصل کرنے کا حکم دیا ہے، اور انسان اس بات سے آزاد ہے کہ وہ جیسے چاہے، جس طرح چاہے وہ رزق حاصل کرے، کیسے بھی کر کے وہ کمائے. لوگ یہ سوچتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ یہ سوچ بالکل غلط ہے، شریعت سے اور دور ہے ایسی سوچ. یعنی کہ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایسی سوچ رکھنا یہ بہت ہی غلط ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان اس بات سے آزاد نہیں ہے کہ وہ جیسے چاہے کمائے، بلکہ وہ اس بات کے پابند ہے، انسان لوگ اس بات کے پابند ہیں کہ لوگ حلال رزق کمائے، حرام کمائی سے اجتناب کرے، حرام کمائی سے پرہیز کرے، بچے، حرام کمائی کے جو بھی وسائل اور ذرائع اختیار کرتے ہیں ان سے اجتناب کرے. حلال ہی کمانا ہے، حرام کمائی سے بچنا ہے. انسان اس بات کے پابند ہے. رزق حلال ہی کیوں، یہ کوسچن ہے، مارک ہے، سوالیہ جملہ ہے کہ حلال رزق ہی کیوں. تو اس کا جواب اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اللہ تعالی قرآن مقدس کے اندر فرماتا ہے کہ اے لوگوں، تم زمین میں صرف وہ چیز کھاؤ جو حلال ہے اور پاکیزہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کا حکم دے رہا ہے. حلال رزق ہی کیوں، اس کا جواب دے رہا اللہ تبارک و تعالی کہ اس لیے کہ تمہیں حلال ہی کھانا ہے اور پاکیزہ کھانا ہے. دوسری طرف اسی آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. شیطان کی اتباع نہ کرو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، شیطان کی پیروی نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ شیطان تمہیں حرام کمائی کی طرف گامزن کرتا ہے، شیطان تمہیں حرام کھلانے کی کوشش کرتا ہے، شیطان تمہیں حرام کمائی کے راستے دکھا دیتا ہے. لہٰذا تم شیطان کی اتباع نہ کرو، شیطان کی پیروی نہ کرو. رب العالمین فرماتا ہے کیونکہ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا. شیطان ہمارا دشمن ہے، جانی دشمن ہے، مالی دشمن ہے، ہر اعتبار سے شیطان ہمارا دشمن ہے. اللہ نے کہہ دیا وہ تمہارا کبھی بھلائی نہیں چاہے گا، وہ خود تو جہنم میں جائے گا، تمہیں بھی جہنم میں لے کر کے جائے گا.
जी हाँ मेरे भाइयों, इसलिए हमें हलाल रिस्क ही हासिल करना है और हलाल ही रिस्क हासिल करना है, क्योंकि प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारी उम्मत पर एक ऐसा जमाना आएगा कि लोग इस बात का परवाह नहीं करेंगे कि माल कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि लोग इस बात का बिल्कुल भी परवाह नहीं करेंगे कि माल कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है। एक जमाना आएगा, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह पेशन गोई की थी, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यह पेशन गोई आज साबित होता हुआ नजर आ रहा है। आज वही दौर है, वही जमाना है जिसमें लोग सिर्फ माल जमा करने की ख्वाहिश रखते हैं, ये नहीं देखते हैं कि माल कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है। मेरे भाइयों, इस बात का उन्हें परवाह ही नहीं है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि माल कहां से और कैसे जमा हो रहा है। बस माल जमा होना चाहिए, माल इकट्ठा होना चाहिए, हमारे पास माल आ जाना चाहिए। मेरे भाइयों, ये वही जमाना है, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो पेशन गोई है वो साबित होता हुआ नजर आ गया। बहरहाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें हराम खाने से रोका है, लेकिन ये भी इशारा कर दिया कि एक जमाना आएगा लोग हराम कमाई में मुलविस रहेंगे, हराम कमाई में डूबे रहेंगे। मेरे भाइयों, जी हाँ, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो यहां भी फरमाया कि कल क़यामत के दिन लोगों से इस माल का हिसाब लिया जाएगा। आज जो भी हम कमा रहे हैं, इस माल का अल्लाह तबारक व तआला हिसाब लेगा। क्या लेगा, कैसे हिसाब लेगा? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मिन ऐन इक्तसबा, मेरे बंदे बताओ कि इस माल को तुमने कहां से हासिल किया, कैसे हासिल किया। वफीमा अनफका, माल तो हासिल कर लिया, खर्चा कहां पर किया। मेरे भाइयों, इस माल का अल्लाह तबारक व तआला हिसाब लेगा कल क़यामत के दिन कि माल कहां से आया और तुमने कैसे खर्च किया। लिहाजा लोगों को हमेशा मुतनब्बा रहना चाहिए, आगाह रहना चाहिए कि इस माल का हिसाब किताब होने वाला है, इस माल का हिसाब किताब होने वाला है। हम तो समझते हैं मेरा पैसा मेरा माल, दुनिया में सीना चौड़ा करके बोलते हैं तुम्हें क्या जाता है, मेरा पैसा है मेरा माल है, हम जहां चाहे जैसे चाहे खर्च करें, जहां से भी आ रहा हो जैसे भी आ रहा हो, तुम्हें क्या लेना देना है। मेरे भाइयों, दुनिया के लोगों को आप जवाब दे देते हो, लेकिन याद रखो कि कल क़यामत के दिन आप अल्लाह के सामने जवाब नहीं दे पाओगे। आप अल्लाह के सामने झाड़ी नहीं मार सकते हो, आप झाड़ नहीं सकते, अपने पल्ले को झाड़ करके ये नहीं बता सकते कि हमारा माल कहां से भी आया होगा, आपको इससे क्या फर्क पड़ता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को आप ऐसा जवाब नहीं दे पाओगे, देना होगा जवाब। इसलिए हलाल रिस्क कमाने की कोशिश करें। हलाल रिस्क ही क्यों? क्योंकि मेरे भाइयों, अगर कोई हराम रिस्क खाता है, अगर कोई हराम खाता है, तो रब्बुल आलमीन न उसकी इबादत कबूल करता है, न उसकी दुआएं कबूल करता है। याद रखिए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक आदमी लंबा सफर करके आता है अल्लाह की बारगाह में, चाहे वो खानाई काबाई क्यों ना हो, चाहे वो मक्का मुकर्रमा ही क्यों ना हो, लंबा सफर करके जाता हो, परागिंदा हालत में हो, थके मानते अल्लाह की बारगाह में जाता हो, और हाथ को उठा करके आसमान की तरफ करता हो, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं कर रहा होता है। क्या? या रब्बी, ऐ मेरे अल्लाह, दुआ करना शुरू कर देते हैं, ऐ मेरे अल्लाह फला तकलीफ है, फला परेशानी है, फला चीज चाहिए, जो भी है वो दुआएं करता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि वे दुआ तो कर रहे होते हैं, हालांकि उनका खाना हराम है, पीना हराम है, उनका पहनना हराम, और उनके जिस्म से जो भी उनका जिस्म में बदन बढ़ा है, गोश्त बढ़ा है, वो भी हराम कमाई से है, और वो दुआएं कर रहा होता है, ऐ अल्लाह मुझे मेरी फला परेशानी को दूर कर दे, मेरी फला तकलीफों को दूर कर दे, मेरी फला ख्वाहिश पूरी कर दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उनकी भला दुआ कैसे कबूल हो सकती है, उनकी दुआ कैसे कबूल होगी। मेरे भाइयों, हम और आप अगर हलाल रिस्क हासिल नहीं करेंगे, हलाल रिस्क नहीं कमाएंगे, तो हमारी इबादत भी कबूल नहीं होगी, हमारी नमाज भी कबूल नहीं होगी, हमारे रोजे भी कबूल नहीं होंगे। और याद रखे कि हम जितना ही गिड़गिड़ा करके रब्बुल आलमीन से दुआ कर ले, हमारी दुआ कबूल होने वाली नहीं है। जी हाँ मेरे भाइयों, इसलिए हलाल रिस्क ही हमें हासिल करना है।
حرام کمائی سے اجتناب کرنا ہے، پرہیز کرنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے حرام کمائی سے ہمیں اجتناب کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، خبردار اے ایمان والو، تم باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ کیا کہتا ہے اللہ رب العالمین؟ ناجائز طریقے سے تم ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ باطل طریقے سے نہ کھاؤ، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ باطل طریقے سے نہیں کھانے کا حکم دے رہا ہے، کیونکہ حرام کمائی کے مختلف صورتیں ہیں، ان میں سے ایک چیز ہے وہ ہے حرام کھانا چوری کر کے اگر کوئی کھاتا ہے۔ اگر کوئی چوری کر کے کھاتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ حرام کھا رہا ہوتا ہے، اور اس کی وعید بھی رب العالمین نے بیان فرما دی کہ اگر کوئی چوری کر کے کھاتا ہے اور وہ پکڑا جاتا ہے تو چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورتیں ہو، انہیں سزا دی جانی چاہیے، اور اس کی سزا یہ ہے، رب العالمین قرآن مجید کا اعلان فرماتا ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں دونوں کاٹ دیے جائیں گے۔ اگر کوئی چوری کر کے کھاتا ہے تو ان کے ہاتھ اور پاؤں دونوں کاٹ دیے جائیں گے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ سبحان اللہ۔ معلوم یہ ہوا کہ چوری کر کے کھانا حرام ہے۔ اسی طریقے سے جوا کھیل کر کے کمایا گیا مال یہ بھی حرام ہے۔ اللہ رب العالمین تو حلال رزق کمانے کا حکم دیا ہے، لیکن اگر کوئی شخص جوا کھیل کر کے مال کو حاصل کرتا ہے، بہت ساری عورتیں خوش ہو جاتی ہیں، ہماری ماں بہنیں آج ہمارے پاس اتنے پیسے آ گئے، لوٹری لگ گئی۔ کیا لگ گئی؟ لوٹری لگ گئی، 3 لاکھ کی لوٹری لگ گئی۔ سب سے پہلے ہم گھر بنائیں گے، سب سے پہلے ہم اپنی خواہشیں پوری کریں گے۔ وہ بنایا ہوا گھر بھی حرام ہے، اس سے خریدی ہوئی چیز بھی حرام ہے، ان سے جتنی بھی اشیاء لی جائے گی اپنے بچوں کے پیٹ میں ڈالا جائے گا، بس ساری کے ساری کمائی حرام ہوگی۔ یاد رہے میرے بھائیوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی سختی سے منع فرمایا، کہا رب العالمین نے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ رب العالمین کہتا ہے کہ اے ایمان والو، تمہارا شراب پینا، تمہارا جوا کھیلنا اور غیر اللہ کے نام پر جو ذبح ہوتے ہیں وہ جانور کھانا، یہ ساری کے ساری چیزیں ناپاک ہیں۔ رب العالمین نے کیا کہا؟ یہ سب کیا چیزیں ناپاک ہے، من عمل الشیطان، اور شیطان کے عمل میں سے ہے۔ اگر کوئی شخص جوا کھیلتا ہے اور جوے سے کمایا گیا مال اگر کوئی کھاتا ہے تو وہ ناپاک مال کھا رہا ہے، وہ ناجائز مال کھا رہا ہے، وہ باطل کھا رہا ہے، میرے بھائیو حرام کھا رہا ہے۔ کیا کھا رہا ہے؟ حرام کھا رہا ہے، کیونکہ یہ شیطان کا عمل ہے۔ حرام کھانا، ناپاک اور گندگی چیزیں کھانا یہ شیطان کا عمل ہے۔ شیطان اس طرح کرتا ہے، انسان نہیں۔ جو مسلمان ہوگا، مومن ہوگا، وہ نہیں۔ جی ہاں میرے بھائی، تو حلال کمائی کی طرف ہم گامزن ہو، حلال رزق حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں، حرام کمائی سے دور رہیں۔ حرام کمائی کے ایک نقصانات اور حرام کمائی کی ایک صورت یہ بھی ہے میرے بھائیوں کہ لوگ آج کاروبار و تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، جھوٹ بول کر کے کماتے ہیں۔ لیا ہے انہوں نے 100 روپے میں، سامنے والے کو بیچ رہا ہے، اللہ کی قسم یہ تو 150 روپے کی ہماری خریداری ہے۔ جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ 150 میں بیچنا چاہے، آپ 200 میں بیچنا چاہے، آپ بیچ لیں، کوئی حق نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر کوئی شخص جھوٹ بول کر کے قسم کھاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے اتنے میں خریدا ہے، یہ اتنے میں لے لو، تو یہ کمائی گئی حرام، یہ کمایا گیا مال بھی حرام ہے۔ اگر کوئی اس طریقے سے کماتا ہے جھوٹ بول کر کے، یا پھر دکان میں تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، ناپ تول میں کمی بیسی کرتا ہے، جب لیتا ہے تو بھر بھر کے لیتا ہے، جب دیتا ہے تو کم کر کے دیتا ہے، میرے بھائیوں یہ بھی حرام کمائی میں شمار ہے، یہ بھی حرام کمائی میں شمار ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص دکانوں میں حرام اشیاء، حرام چیزوں کی تجارت کرتا ہے، حرام چیزوں کے کاروبار کرتا ہے، کوئی شراب بیچتا ہے، کوئی گٹکا بیچتا ہے، کوئی سگریٹ بیچتا ہے، کوئی حرام چیزیں بیچتا ہے، اور وہ بیچا گیا مال جو انہوں نے بیچا ہے، اس سے جو نفع ہوا ہے، اس سے جو پیسے حاصل ہوا ہے، وہ بھی حرام میں ہی شامل ہوگا، وہ بھی حرام میں ہی شامل ہوگا میرے بھائیوں۔ اور ایسے تمام حرام اشیاء سے رب العالمین نے ہمیں متنبہ کیا ہے، ہمیں
हमें आगाह किया है, खबरदार किया है, मना किया है। रब्बुल आलमीन ने कहा तुम ऐसे हराम कमाई से इज्तनाब करो, परहेज करो, बच जाओ। सुभान अल्लाह। अगर ऐसा देखा जाए तो हर इंसान हराम कमाई में आज मुलव्विस है, हर इंसान। सुभान अल्लाह। आज धोखेबाजी से भी माल खरीदो फरोख्त करते हुए नजर आते हैं। धोखेबाजी से कैसे मेरे भाइयों, धोखेबाजी से कैसे? अगर कोई चीज बेचने जाता है, वो उनको पता है कि हम बाइक बेच रहे हैं, बाइक में फला ऐब है, फला नुक्स है, फला कमी है, लेकिन सामने वाले को खूबियां बता करके बेचता हुआ नजर आता है कि इसमें इतनी खूबी है। कमियां नहीं बताते हैं, खूबियों को बता करते हैं और कहते हैं कि ये बहुत अच्छा बाइक है, ये बहुत अच्छी गाड़ी है, इसे तुम ले जाओ, ये बहुत अच्छा सामान है, बहुत अच्छी चीज है, हालांकि उसके अंदर ऐब है। अगर कोई इस तरह से भी धोखा नहीं करता है कि ऐब है और ऐब को नहीं बताता है और सामने वाले को बेचता है, खरीदो फरोख्त करता है, याद रहे कि इससे हासिल किया गया माल भी माल हराम में शामिल होगा। इससे हासिल किया गया माल भी माल हराम में शामिल होगा, ये कमाई भी हराम होगी। इसलिए मेरे भाइयों, ऐसे धोखाधड़ी कामों से हमें इज्तनाब करना चाहिए और उन हिस्सों से, उन दुरुस्त से हमें सबक हासिल करना चाहिए। हमारे असलाफ के वाकयात से हमें सबक हासिल करना चाहिए कि वो लोग हलाल कमाई की किस कदर फिक्र किया करते थे और हराम कमाई से कैसे बचा करते थे। मेरे भाइयों, एक वाकया में एक खातून का वाकया बताता हूँ। एक खातून, एक औरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के पास आती है। किसके पास? इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के पास, और आकर के कहती है कि ऐ इमाम अहले सुन्ना, क्या कहती है कि ऐ इमाम अहले सुन्ना, हमारा एक सवाल है, सुनिएगा मेरे भाइयों। मेरी माँ और बहनों से भी गुजारिश है कि वो भी सुने इस वाक़े को। उन्होंने कहा इमाम अहले सुन्ना, कहा क्या बात है? कहा मेरा एक सवाल है, सवाल ये है कि मैं कपड़ा इतना करती हूँ, मैं कपड़े का काम करती हूँ, कपड़ा बुनती हूँ, कपड़ा तैयार करती हूँ, और मैं चिराग की रोशनी से कपड़ा बुनती हूँ, चिराग के रोशनी से मैं कपड़ा तैयार करती हूँ। इमाम अहले सुन्ना, मेरा सवाल यह है कि मेरा तेल जब खत्म हो जाता है, चिराग का तेल जब खत्म हो जाता है, तो मैं चांद की रोशनी से कपड़ा बुनती हूँ। सवाल यह है कि मैंने आधा कपड़ा चिराग की रोशनी से बुना है और आधा कपड़ा मैंने चांद की रोशनी से बुना है। तो अब सामने वाले के पास जब मैं कपड़ा बेचूं तो क्या उन्हें बताना ये जरूरी होगा, लाजमी होगा कि मैंने ये आधा कपड़ा चिराग की रोशनी से बुना है और आधा कपड़ा मैंने चांद की रोशनी से बुना है? क्या मुझे ये बताना होगा? सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह जब सवाल सुनते हैं हिल जाते हैं मेरे भाइयों। वो कहते हैं आज के जमाने में इस तरह का सवाल करने वाली एक खातून, सुभान अल्लाह। सबसे पहले इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह पूछते हैं, ऐ खातून, तो पहले ये बता कि तू किस खानदान से है, तू किस खानदान से है, किस घराने से तू ताल्लुक रखती है? सुभान अल्लाह। खातून जवाब देती है कि ऐ इमाम अहले सुन्ना, मैं बिश्र अल हाफी के खानदान से हूँ, मैं बिश्र अल हाफी रहमतुल्लाह अलैह के घराने से हूँ। बिश्र अल हाफी को जानते हैं? बिश्र अल हाफी एक निहायत ही नेक शख्स गुजरे हैं, इनके घराने से थे। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ऐसे भी घराने के लोग, ऐसे भी घराने के खातून ऐसे सवाल कर सकते हैं, वरना आज के जमाने में इस तरह का सवाल करने वाले कि आधा कपड़ा मैंने चिराग की रोशनी से बुना है, आधा कपड़ा मैंने चांद की रोशनी से बुना है, ऐसे सवाल करने वाले आज के जमाने में तो नहीं मिल सकता। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, ऐसे हुआ करते थे हमारे असलाफ के वो खातून, वो औरतें या वो मर्द मेरे भाइयों कि हलाल कमाई की फिक्र क्या करते थे, हलाल कमाई की फिक्र क्या करते थे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक खाना आता है, उनके घर में जो गुलाम होते हैं, माँ आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के, उनके घर में जो गुलाम होते हैं वो खाना लेकर के आते हैं। किसी को धोखा दे करके वो उनको गिफ्ट में, हदिया में खाना मिलता है, वो खाना लेकर के आते हैं, घर में खाते हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी खाते हैं उस खाने को। जब खा लेते हैं तो गुलाम कहता है, क्या कहता है कि जानते हो कि ये खाना मुझे कहां से मिला?
मुझे फला आदमी ने दिया है, मैं उनको धोखे से एक चीज बता दिया, वो खुश होकर के मुझे ये खाना दिया है। सुभान अल्लाह। जब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये जुमला सुनते हैं, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हलाल खाने की और हराम कमाई से परहेज करने की इस कदर फिक्र थी कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने हाथ को मुंह में डाला और जितना अंदर खाया हुआ था वो सारे के सारे खाने पे बाहर निकाला और अपने रब से कहा, आय अल्लाह, मैं अपनी ताकत के मुताबिक अपने जो मैंने खाया था उसे मैंने बाहर निकाल दिया है, जो अतरे में फंस गया है अल्लाह माफ करने वाला तू है, अल्लाह तू हमें माफ फरमा। ऐसे हमारे असहाब हुआ करते थे मेरे भाई, हमारे सहाबा हुआ करते थे, हराम कमाई से बचते थे, हलाल की फिक्र किया करते थे, हराम लुकमा अपने पेट में डालने की कोशिश करते थे। आज हम क्या करते हैं, खुद भी हराम खाते हैं, बच्चों को भी हराम खिलाते हैं, बीवी को भी हराम खिलाते हैं, सारे के सारे खाने आज हराम के हैं और हम अल्लाह से ये तवक्कुल करते हैं कि हमारा ये बच्चा अल्लाह का फरमाबरदार बन जाएगा, हमारा ये बच्चा दीन पर चलने वाला बन जाएगा, हमारी बीवी हमारी फरमाबरदार बन जाएगी, हमारी बीवी हमारे घराने नेक माहौल में चलेंगे, नेक माहौल में पलेंगे। हम ये तवक्कुल करते हैं और उम्मीद करते हैं मेरे भाइयों। कहां से कैसे मुमकिन है मेरे भाइयों कि हमारे बच्चे अल्लाह के फरमाबरदार हो जाए, माँ बाप के फरमाबरदार हो जाए, हमारी बीवियां शौहरों के फरमाबरदार हो जाए, हमारे बीवी बच्चे सब के सब अल्लाह के फरमाबरदार हो जाए। ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे पॉसिबल है? सबके हमने उनके पेट में हराम लुकमा डाला हुआ है, उनके पेट में उनका जो जिस्म बड़ा है, उनके बदन में जितने गोश्त है वो सब हराम कमाई से है। हम ये कैसे तवक्कुल कर लेते हैं कि हमारे बच्चे नेक और साले और फरमाबरदार बन जाएंगे? कैसे मेरे भाइयों? पहले हम हराम कमाई से बचें, वरना इसका नुकसान ये होगा मेरे भाइयों कि हमारा दिल पत्थर बन जाएगा, हमारा दिल पत्थर बन जाएगा मेरे भाइयों, सख्त हो जाएगा। क्योंकि एक आदमी इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के पास आते हैं और कहते हैं कि मेरा एक सवाल है, सवाल ये है कि आज हमारे दिल में कुरान और हदीस की बातें असर नहीं कर रहा है, कुरान और हदीस की बातें असर नहीं कर रहा है, क्या वजह है, क्या सबब है? हम कुरान की आयतें सुन रहे हैं, हदीसें सुन रहे हैं, जन्नत के बारे में सुन रहे हैं, जहन्नम के बारे में सुन रहे हैं, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरीके से आज बहुत सारे लोगों के सामने ये चीख करके आप कितना ही गला खराब कर ले, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मौलाना का काम है मिंबर पर खुतबा देना, हमारा काम है सुनना। मेरे भाइयों, वो आदमी भी यही सवाल लेकर के आया, हम सुनते हैं लेकिन कुछ हासिल नहीं हो रहा है, वजह क्या है, सबब क्या है? इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि तुम पाकीज़ा रिज़्क़ खाओ, कहा कि तुम पाकीज़ा रिज़्क़ खाओ। सुभान अल्लाह। सुनिएगा मेरे भाइयों, पाकीज़ा रिज़्क़ खाओ। बेशक वहां से चले जाते हैं, जाकर के दूसरे आलिम से सवाल करते हैं, दूसरे आलिम दीन से सवाल करते हैं और कहते हैं कि मेरा एक सवाल है, सवाल ये है कि मैं कुरान और हदीस की बातें सुनता हूँ लेकिन कुछ असर नहीं होता है, सबब क्या है, माजरा क्या है? मेरे भाइयों, वो लोग कहते हैं कि तुम कसरत से अल्लाह का जिक्र करो, कसरत से अल्लाह का जिक्र करो, तुम्हारा दिल पिघल जाएगा, तुम्हारे दिलों में असर होगा, तुम्हारे दिलों में असर होगा। तो उन्होंने कहा कि तुमसे पहले हमने इमाम अहमद बिन हंबल से पूछा तो उन्होंने कहा पाकीज़ा रिज़्क़ खाओ, हलाल रिज़्क़ खाओ, तुम्हारा दिल पिघलेगा, तुम्हारे दिलों में कुरान और हदीस की बातें असर होंगी। सुभान अल्लाह। तो वो दोनों आलिमों ने कहा कि अगर इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ये कह रहे हैं कि तुम हलाल रिज़्क़ खाओ तो पहले तुम्हें हलाल रिज़्क़ खाना पड़ेगा, का जिक्र करना पड़ेगा, जा करके तुम्हारे दिलों में कुरान और हदीस की बातें असर करेगी। सुभान अल्लाह। तो मालूम यह हुआ मेरे भाइयों कि अगर कोई हराम खाता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया ही में उसको अजाब दे देता है, दुनिया ही में अल्लाह रब्बुल आलमीन इस अजाब का शिकार बना देता है कि लोगों के दिलों में कुरान और हदीस की बातें असर नहीं करता। जी हाँ, कुरान और हदीस की बातें असर नहीं करती है। चाहे मौलाना चीखते रहे, चिल्लाते रहे और आप सुनते रहे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। जन्नत के बारे में बता रहे, जानते हैं जन्नत कितनी बड़ी नियामत है, आपको जहन्नम से डरा रहे, जानते हैं जहन्नम कितने भयानक चीज है मेरे भाइयों, लेकिन कोई फर्क पड़ रहा है?
जिस्म के रोटे खड़े हो रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, दिल पिघल रहा है, बातें असर कर रही है। नहीं, हमारा दिल सख्त हो चुका है, हमारा दिल सख्त हो चुका है, हमारा दिल ठंडा हो चुका है, हमारा जिस्म ठंडा हो चुका है। कहां से भाइयों? क्योंकि हमने हराम खाए से, हराम कमाई से अपने जिस्म को पाला है, हराम कमाई से अपने जिस्म को बढ़ाया है, जिसकी वजह से आज हमारे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बदले मेरे भाइयों, असलाफ भी तो थे, असलाफ भी तो थे, अगर सुन लेते आंखों से आंसू जारू हो जाती, गिर जाते मेरे भाइयों जमीन में, जहन्नम की बात आती, बेहोश हो जाते, लेते, समीप पर गिर जाते। हमारा ऐसा हो रहा है? ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। क्यों नहीं हो रहा है? हराम कमाई की वजह से, हराम कमाई की वजह से मेरे भाइयों। हराम कमाई से इज्तनाब करें, परहेज करें। वजह क्या है? आखिर क्यों लोग आज हराम कमाई में मुलविस होते चले जा रहे हैं? बुनियादी वजह यह है कि आज हमारे दिलों में अल्लाह का खौफ नहीं है, अल्लाह का डर नहीं है। और जिसके अंदर अल्लाह का खौफ ना हो, अल्लाह का डर ना हो, मेरे भाइयों, वो किसी भी हद तक जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, कैसे भी कमा सकता है, कैसे भी खा सकता है। चोरी करके भी खा लेगा, जुआ खेल के भी खा लेगा, सीधी कारोबार करके भी खा लेगा, धोखा दे करके, झूठ बोल करके भी खा लेगा। मेरे भाइयों, यतीमों का माल हड़प करके खाएगा, फसलों का माल हड़प करके खाएगा, ताकत करके खाएगा, कैसे भी खाएगा, क्योंकि उसके दिल में अल्लाह का खौफ नहीं है। मेरे भाई को ऐसी हरकतें तो न करता, ऐसी कमाई से वो हमेशा बाज रहता। दूसरी बुनियादी वजह यह है, एक तो ये कि अल्लाह को खौफ नहीं है, और दूसरी वजह यह है मेरे भाइयों कि लोग रातों रात अडानी और अंबानी बनना चाहते हैं, रातों रात मालदार बनना चाहते हैं कि हम रातों रात अमीर हो जाएं। कहां से और कैसे करें कि एक ही झटके में हम लाखों कमा लें, एक ही झटके में हम करोड़पति बन जाए, एक ही झटके में हम अरबपति बन जाए। मेरे भाइयों, आज लोगों की ये ख्वाहिश है, आज लोगों की ये ख्वाहिश है हमारा माल ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाए। कैसे? मेरे भाइयों, अगर आप मोमिन हैं, अगर आप वाकई मुसलमान हैं, अगर आपके अंदर है, अगर वाकई आपके अंदर अल्लाह का खौफ और अल्लाह का डर है, भाइयों, आप अल्लाह पर तवक्कुल करें, अल्लाह पर भरोसा करें, इंशाअल्लाह अज़ीज, अगर अल्लाह ने चाहा तो आप रातों रात अमीर बन जाएंगे। ऐसे हजारों मिसाल है, ऐसे लाखों मिसाल है कि अल्लाह वालों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रातों रात अमीर बना दिया है। अल्लाह कुरान में ऐलान करता है, अल्लाह यब्सुतु रिज़्क़ लिमन यशा, अल्लाह जिसे चाहे रिस्क को फराख कर देता है, कुशादगी कर देता है, बढ़ा देता है, अल्लाह कहता है। और एक जिंदा जावेद मिसाल अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो सुन लीजिए। ये आखिरी वाकया बता करके मैं अपनी बात खत्म कर दूं, क्योंकि वक्त बहुत मुख्तसर होता है। क्या कह दिन है मेरे भाइयों, सऊदी अरब के अंदर, सऊदी अरबिया, अरबी में वो भी यूट्यूब में अगर तलाशेंगे तो वो वाकया मिल जाएगा। एक आलिम दीन गुजर रहे थे, एक आलिम दीन गुजर रहे थे, सूडान का एकदम काला कलोटा, कपड़े फटे हुए, मैले गंदे, वो बकरियां चरा रहे थे, और एक आलिम उसके पास से गुजर रहे थे। उस आलिम दीन ने कहा, क्यों ना मैं इसको आजमा लूं, एक आजमाइश ले लूं, आजमा लूं इसको। पीछे में जो गाड़ी में लोग थे उनको मोबाइल दिया, कहा कि वीडियो कर लेना इसका। वो गए कि लोग वीडियो बना रहे हैं, वो वीडियो आज भी यूट्यूब में मौजूद है, अरबी में मौजूद है। वो आलिम दीन उस सुडानी चरवाहे के पास गया, जाने के बाद कहा कि आप क्या कर रहे हो? कहा मैं बकरियां चरा रहा। कहा कि एक बकरी मुझे दे दो मुझे। कहा कि नहीं दे सकता। कहा क्यों? कहा कि ये मेरे मालिक का है, मेरे आका का है, उसका हमें जवाब देना है। कहा वो कहाँ, यहाँ कौन वो है? यहाँ पर नहीं है ना, वो तुम मैदान में हो, वो कहाँ महलों में है, तुम्हें से क्या फर्क पड़ता है? एक दे दो, तुम्हें इतने पैसा दे दूंगा। कहा नहीं दे सकता। कहा डबल उजर ले लो, डबल उजरत ले लो, डबल आप ये ले लो, पैसे ले लो, ट्रिपल ले लो, जितना चाहे पैसे ले लो, मैं आपको पैसे देने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक बकरी मुझे दे दो। कहा नहीं दे सकता। कहा कि आपका आका, आपका मालिक नहीं देख रहा है, आप बता देना कि मर गया या भेड़िए या किसी भेड़िए ने खा लिया है, किसी चीज में हादसा हो गया जिसकी वजह से एक बकरी गायब है। वो कहा यहाँ गिनने के लिए आते हैं। कहा कि नहीं, कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, मेरा अल्लाह देख रहा है। एक सुडानी, एक चलाने वाले के अंदर ये ईमान मेरे भाइयों, ये तवक्कुल कि कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, एक अल्लाह देख रहा है।
है मेरे भाइयों, खाले कलौटे हैं, फटे कपड़े कपड़े हैं, लेकिन अल्लाह पर ईमान इस कदर मजबूत कि उन्होंने अपने ईमान का सौदा नहीं किया। उन्हें डबल पैसे मिल रहे थे, 5 पैसे मिल रहे थे, कहा हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। मेरे भाइयों, वो आलिम दीन वीडियो बना करके ले जाते हैं, बड़े बड़े सीएस को दिखाते हैं, हुक्मरानों को दिखाते हैं, हाकिम को दिखाते हैं। ये देखिए ईमान, एक मजबूत ईमान वाले की ये पहचान। ये देखिए अमानतदारी में कभी खयानत न करने वाले शख्स। जब वीडियो को दिखाया गया लोगों को, बड़े बड़े आलिम दीन को और भी शयूख को, वहां के सऊदी अरब के और भी लोगों को, मेरे भाइयों वो सब मिल करके उस चरवाहे के पास आए और आने के बाद कहा कि हम इतना इनाम आपको बतौर इनाम देते हैं, आपके ईमान का जज्बा देख करके, आपके ईमान का जज्बा देख करके, आपके ईमान की मजबूती देख करके हम ये इनाम के तौर पर आपको हदिया दे रहे हैं, आप इस हदिये को कबूल कर लें। मेरे भाइयों, बताया जाता है कि उन्हें इतना दराहिम मिलते हैं, इतने दिनार मिलते हैं, इतने पैसे मिलते हैं, सुभान अल्लाह, कि वो एक ही दिन में लाखपति और अरबपति करोड़पति बन जाते हैं। सुभान अल्लाह, एक ही दिन में मेरे भाइयों वो अमीर हो जाते हुए उन्हें ऐसा इतना पैसा मिलता है। सुभान अल्लाह। तो अगर अल्लाह चाहे, अल्लाह पर हमारा तवक्कुल रखे, भरोसा रखे कि रिस्क देने वाला अल्लाह है। हम हलाल रास्ते में चल करके लाखपति अरबपति बन सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं, अमीर बन सकते हैं। अल्लाह ने चाहा तो बेशुमार अल्लाह रब्बुल आलमीन देगा। और कौन कहता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों को नहीं दिया था? उस्मान गनी कौन थे? उस्मान गनी कौन थे, जरा बताए तो। उस्मान गनी मुसलमान थे क्या नहीं थे? साबित है कि नहीं? उनके पास कितना माल था? अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो मुसलमान थे क्या नहीं थे? क्या वो हराम कमाई करते थे? नहीं, हलाल तिजारत क्या करते थे अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जब उनका इंतकाल हुआ तो वरासत तकसीम होने के बाद भी उनके माल को लोग गिन नहीं पाए, इतना माल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया था। तो हम अल्लाह पर ईमान रखें, अल्लाह पर तवक्कुल रखें, अल्लाह पर भरोसा रखें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह चाहेगा तो बेशुमार हमें रिज़्क़ देगा। बस हम हलाल रास्ते से हम भटके ना, हराम कमाई की तरफ ना जाए। मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। अल्लाह आलमीन तो हमें हलाल रिज़्क़ हासिल करने की तौफीक अता फरमा, हराम कमाई से इज्तनाब करने का तो हमें तौफीक अता फरमा। अल्लाह तो हमें जब तक जिंदा रख, हालत इस्लाम पर जिंदा रख, जब हमारा खात्मा फरमा, खात्मा बखैर फरमा, जब हमारी मौत हो हमारी ज़मा पर आखिरी कलाम कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व नस्तग़फ़िरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह, इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य यዒज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून व लज़िक्रुल्लाहि तआला औला व अज़्ज़ व जल्ल व अतम्मु व अकबर।